Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, we will going to discuss about the new classical age that we study in English literature. And I'm telling you guys, this age is most important and relevant for upcoming UGC NET English exam, which will be conducted in June. Why this age is important? Because there are so many changes and historical background we study in this age by which we consider this age important. Periodical, magazines, kinds of question we will get in the form of comes from this age. So guys, this age is most important, and to understand this age properly, age divided into sub periods. I'll tell you in detail each periods of we study in this classical age, neoclassical age of literature. So if we talk about the timeline, then 1660 to 1798, this is the timing line of neoclassical age in British literature. So guys, when you study ages, then it gives you surely clarity towards the writer itself. क्योंकि आप जिन भी राइटर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर बिलोंग टू द एज, right? Respective age they are belong to. So if you really want to clear cut towards the writers, major writers that have been asked again and again in examination, then you should understand the age they belong to, right? So इसी पर्सपेक्टिव से मैंने ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया है, so that you guys get clarity towards this age, new classical age. So guys, to go further, first I would like to tell you about brief what exactly we understand towards the new classical age in literature. So guys, if I talk about this age, then this is one of the most important literary periods in British literature. Of course, because it is spanning from 1660 to 1798. Guys, it is called neoclassical. The reason behind it, major writers from Greek and Roman like Homer, Virgil, Horace, in this period, basically in neoclassical period, the writers, those are belong to this age, trying to admire and imitate the literary ideals of classical. That is why we call this age neoclassical. Hope guys you are just understand what exactly I'm just going to trying here to make you understand, right? So guys, basically ये जो आपका न्यू क्लासिकल एज है, इसको न्यू क्लासिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस एज में जो राइटर्स थे, द राइटर्स बिलोंग टू दिस एज, वो राइटर्स क्या कर रहे थे, जितने भी ग्रीक एंड रोमन मेजर राइटर्स वी स्टडी लाइक होमर, वर्जिल एंड हॉरेस, इनको एडमायर कर रहे थे एंड इनके जो आइडियल्स हैं उनको इमिटेट किया जा रहा था इन दिस एज, ड्यूरिंग दिस एज. दैट इज़ वाई हम इसको न्यू क्लासिकल एज बोलते हैं. और गाइज, इस एज को अच्छे से अंडरस्टूड करने के लिए this particular age is divided into sub periods, right? So we have three phases. I'm just going to write on whiteboard. First we have restoration age that comes into new classical age, right? So first we have restoration age, right? And timeline we have restoration 1660 to 1700, right? Remember the timeline also, because chronology question gives you solid help if you understand these timeline of the different ages we study in literature, right? So first subdivision we have restoration age, timeline 1660 to 1700. and basically guys, ये जो आपका restoration age है, यहाँ पे क्या हो रहा है, किंग चार्ल्स दी सेकेंड की वापसी के बाद का लिटरेचर दिखाया जा रहा है, राइट? रेस्टोरेशन एज में. नेक्स्ट वी हैव सब डिवीजन ऑगस्टन एज. ऑगस्टन एज. एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम लाइन, देन 1700 टू 1745, दिस इज द ऑगस्टन एज. एंड बेसिकली इस एज के अंदर क्लासिकल आइडियल्स और प्रॉस राइटिंग का गोल्डन पीरियड कंसीडर किया जाता है ऑगस्टन एज को, राइट? दैट वी स्टडी इनटू न्यू क्लासिकल एज as a subdivision, okay? Sub periods you guys can say. And third one we have age of sensibility. Age of sensibility, right? Timeline of this 1745 to
1798, राइट. एंड टू अगर हम इन सबको मिला लें दैन इट विल बिकम द न्यू क्लासिकल एज. सो बेसिकली न्यू क्लासिकल एज में हम लोग स्टडी करते हैं रेस्टोरेशन एज की, ऑगस्टन एज की, एज ऑफ सेंसिबिलिटी की, राइट. एज ऑफ सेंसिबिलिटी बेसिकली यहाँ पे रैशनलिज्म से रोमांटिसिज्म की और ट्रांजिशन देखने मिलेगा आपको व्हेन वी स्टडी इट. ओके, अभी हम लोग डिटेल्ड में वन बाय वन डिटेल्ड स्टडी करेंगे इनके जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं and major writers we study. All the things I'll give you in detailed manner, so stay tuned with me till the end of my video. Don't skip, right? If you really want to understand each and every point, then don't skip, watch complete video, right? Let's first understand restoration age, right, in detailed manner. Okay, सो रेस्टोरेशन एज बेसिकली गाइज, ये जो रेस्टोरेशन आपका एज है, अगर मैं इसकी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करूँ, दैन इन 1660 व्हाट हैपन, किंग चार्ल्स द सेकेंड की वापसी हुई, राइट. ही कम बैक एंड इन्होंने इनकी वापसी होने के साथ ही मोनार्की क्या हो गई, रीस्टोर हो गई, राइट. मोनार्की आपकी क्या हो गई, रीस्टोर हो गई, राइट. सो रीस्टोर ऑफ मोनार्की आफ्टर दी कमबैक ऑफ किंग चार्ल्स II in 1660. Remember, this is the historical context of the restoration age, right? So basically ये जो restoration age है इसको ड्रामा एंड सटायर का युग भी कहा जाता है, right? और प्यूरिटन का जो इन्फ्लुएंस था, सेकेंड जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपका यहाँ पे बनेगा, प्यूरिटन का जो इन्फ्लुएंस था, influence of Puritan, राइट. जो प्यूरिटन का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, जिससे थिएटर को फिर से खोला गया. दैट वॉज बैन 1642 अराउंड, राइट. थिएटर्स को 1642 में बैन कर दिया गया था प्यूरिटन्स के द्वारा. अभी क्या हो रहा है, जब किंग चार्ल्स II का वापसी हो गया, मोनार्की रिस्टोर हो गई, और आपका जो इन्फ्लुएंस है प्यूरिटन का जब खत्म हो गया, तो इसके कारण जो आपका थिएटर है वो भी क्या हो गया, वापस से खोला गया, राइट. सो थिएटर जो है, रीओपन थिएटर्स, राइट. सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एज वेल गाइज. नंबर थर्ड फैक्ट वी हैव फ्रेंच इन्फ्लुएंस. सो गाइज कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दिस पीरियड जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था वो बढ़ रहा था, राइट. डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस, राइट. ड्यूरिंग दिस रेस्टोरेशन पीरियड में क्या हो रहा है, फ्रेंच इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और लिटरेचर में विट, सटायर और रियलिज्म को इंट्रोड्यूस कराने लगे, राइट. जो आपका विट है, सटायर है, राइट, और आपका रियलिज्म आपको देखने मिलने लगा ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट. सो आफ्टर द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, लेट चेक आउट द literary features of the restoration age. So guys, let's have a look about literary features of this age, restoration age. तो basically literary features में we have comedy of manners. Comedy of manners क्या है ये? सो गाइज बेसिकली जो हाई क्लास सोसाइटी की हाइपोक्रेसी को सटायर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स. इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव इन डिटेल्ड ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द कॉमेडी ऑफ मैनर्स. इन ब्रीफ मैं आपको यही बोलूँगी कि जितना भी हाई क्लास सोसाइटी की हाइपोक्रेसी होती है उसको सटायर करना ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है, जो कि ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, राइट, राइज हो रहा था. As well, heroic tragedy. Heroic tragedy. If I talk about the heroic tragedy, then guys, heroic tragedy basically जो जहाँ पर grand, bombastic plays, classical themes पर बनाए जाते हैं, that is called heroic tragedy, which developed during this period, right? As well, political and satirical writing enhance हो रही थी, right? Enhancement of political and satirical writings.
राइट। देखिए ये जितनी भी फैक्ट्स वी आर जस्ट स्टडिंग नाउ इन दी रेस्टोरेशन एज, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं टू आंसर दी क्वेश्चंस, क्योंकि जो एग्जामिनर है यहीं से क्वेश्चंस पुट करते हैं कि जो आपके कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं, आपका हीरोइक ट्रेजेडी है, और आपका जो पॉलिटिकल सटायर राइटिंग्स है, इन्हेंसमेंट कब हो रहा था ड्यूरिंग, देन आपको ऑप्शंस में सेलेक्ट करना होता है। एंड इफ़ यू स्टडी दिस इन ग्रेट लेवल, देन यू गाइज easily answer them, right? So this is the purpose to write all the facts for you all. So guys, after studying literary features of the age, it is compulsory to know major writers and their works. Now I'm going to discuss major writers and works of the restoration age, right? Major writers and works. So guys, first we have John Dryden. John Dryden, most famous for Absalom and Achitophel. Okay, Absalom and Achitophel. ये एक इनका पॉलिटिकल सटायर है. एज आई टोल्ड यू कि पॉलिटिकल एंड सटायरिकल राइटिंग का इन्हेंसमेंट हुआ था. सो दिस इज द एग्जाम्पल कि जो जॉन ड्रेडन थे, इन्होंने एब्सोलम एंड एकिटोफल लिखा था, विच इज पॉलिटिकल सटायर. एज वेल ही रोट ऑल फॉर लव. ऑल फॉर लव, राइट. ये इनका एक हेरोइक ट्रेजेडी है, राइट. नेक्स्ट गाइज, आफ्टर द जॉन ड्रेडन वी हैव विलियम वाइचरले. विलियम वाइचरले, राइट. इनका मोस्ट फेमस वर्क द कंट्री वाइफ. द कंट्री वाइफ, राइट. ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स का ही एग्जाम्पल है, विच आई टोल्ड यू मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस रेस्टोरेशन एज, कॉमेडी ऑफ मैनर्स. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द कंट्री वाइफ, रिटन बाय विलियम वाइचरले, राइट. सो गाइज, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करने हैं. अपार्ट फ्रॉम देम आपको जॉन ड्रेडन के अदर मेजर वर्क्स की क्रोनोलॉजी देखनी है, एंड विलियम वाइचरले की, दोज वी स्टडी, राइट. After William Wycherley, we study in the Restoration age Aphra Behn. Okay, first let me space for you. So guys, major writers, main number third we have Aphra Behn. Aphra Behn. She wrote Orinoco or Oronoco. Orinoco. This considered first prose novel ऑन द थीम ऑफ स्लेव नैरेटिव, राइट. इसको फर्स्ट प्रॉस नॉवल कंसिडर किया जाता है. फर्स्ट प्रॉस नॉवल ऑन द थीम ऑफ स्लेव नैरेटिव. स्लेव नैरेटिव, राइट. ये इसका थीम है, रिटन बाय एफ्रा बेन, राइट. इसको इन डिटेल आपको स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ से समरी बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाता है. After the Aphra Behn, number 4 major writers, we have John Bunyan, right? John Bunyan. I'm just writing here. John Bunyan, who wrote The Pilgrim's Progress. The Pilgrim Progress, right? ये एक एलोगोरिकल प्रॉस है. प्रॉस, राइट. सो गाइज, ये आपके हो गए 4 मेजर राइटर्स वी स्टडी इन रेस्टोरेशन एज. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अगस्टन एज इन डिटेल्ड मैनर. सो गाइज, लेट्स डिस्कस अगस्टन एज आफ्टर द रेस्टोरेशन. तो बेसिकली जो टाइम लाइन है अगस्टन एज का, वी हैव 1700 टू 1745, राइट. तो बेसिकली इस एज को राइज ऑफ प्रॉस एंड सटायर, क्योंकि इस एज में आपका राइज हो रहा था कहीं ना कहीं प्रॉस एंड सटायर का. और वाई अगस्टन एज, हम इसको अगस्टन एज क्यों कहते हैं? द रीजन बिहाइंड इट, जो मेजर राइटर्स थे उन्होंने रोमन एम्पायर अगस्टस, ये आपके रोमन एम्पायर जिनका नाम था गाइस अगस्टस, राइट.
तो बेसिकली जो राइटर्स इस एज में लिख रहे थे, अगस्तन एज में, इन्होंने रोमन एम्पायर अगस्तस के समय की लिटरेचर स्टाइल को अडॉप्ट किया. दैट इज वाई वी कॉल्ड अगस्तन एज. राइट, रिमेंबर द फैक्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि जो मेजर राइटर्स थे ड्यूरिंग दिस पीरियड वी स्टडी, इन्होंने रोमन एम्पायर अगस्तस के समय की जितना भी लिटरेचर स्टाइल था उसको अडॉप्ट किया था. दैट इज वाई वी कॉल्ड इट अगस्तन एज. राइट, और इस ड्यूरिंग दिस पीरियड जो आपका लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा रैशनल, पॉलिश्ड और फॉर्मल हो चुका था. राइट, नाउ द literature become rational, polished and formal. right, देखिए दीज इंपॉर्टेंट स्मॉल पॉइंट्स जो डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं बिटवीन एजेस, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड राइट प्रॉपरली. अगर आपको इन डिफ्रेंशिएट के बारे में अच्छे से नॉलेज है कि मतलब व्हाट इज़ द चेंजेस हैपनिंग इन पर्टिकुलर एज, तो आप अच्छे से आंसर कर देंगे. आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. राइट, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू से अगैन एंड अगैन, प्लीज स्टडी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. अगर आपका वंस इफ़ यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट देन यू नो नीड टू अगैन एंड अगैन टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू ओनली फोकस योर PYQs एज वेल MCQs. आप उन्हीं को सॉल्व करेंगे फिर, और आपको अच्छे से आंसर भी क्लियर हो जाएगा. राइट, so please understand these small points that I describe on the whiteboard to make you understand particular ages. ओके, सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग अबाउट द अगस्तन एज. जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोमन एम्पायर अगस्तस का जितना भी लिटरेरी स्टाइल था उसको अडॉप्ट किया जा रहा था. दैट इज़ वाई इसको अगस्तन एज बोला जाता है. लिटरेचर इस एज में बहुत ज़्यादा रैशनल, पॉलिश्ड और फॉर्मल हो चुका था. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ब्रीफ अबाउट द लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस अगस्तन एज. राइट, सो अगर हम इसके लिटरेरी फीचर्स देखें, देन राइज ऑफ सटायर. राइट, तो गाइस लिटरेरी फीचर्स में राइज ऑफ सटायर्स. तो अभी क्या हो रहा है, सटायर्स पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, और सटायर्स के थ्रू ये कहीं ना कहीं सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर को टॉन्ट करते थे. राइट, तो उनको कहीं ना कहीं हमेशा मतलब कि इस तरीके से स्पॉट किया जाता था विद द हेल्प ऑफ सटायर, सोसाइटी को और उसकी पॉलिटिक्स को ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो दैट इज़ वाई वी कॉल्ड कि जो अगस्तन एज है उसको उसमें राइज ऑफ सटायर भी हो रहा है, क्योंकि सटायर के थ्रू ही मतलब सोसाइटी को इन्फॉर्म किया जाता था, या पीपल के अमंग जितने भी लोग थे उनके अमंग जितना भी वो व्यंग कर सकते हैं, तीखा व्यंग कर सकते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी पर, वो सभी किया जाता था विद द हेल्प ऑफ सटायर. राइट, एज वेल ग्रोथ ऑफ पीरियोडिकल्स एंड जर्नलिज्म. ग्रोथ ऑफ periodicals and journalism. तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर राइट और आपके मैगजीन इस एज में ड्यूरिंग दिस पीरियड पॉपुलर होने लगे. राइट, सो यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा एग्जामिनर आपको पुट करता है, फ्रेम करता है कि अबाउट दी जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स. तो यहीं से इनका राइज हो रहा है. राइट, अब आगे ये क्या होंगी, आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हो रहा है. राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोस राइटिंग का गोल्डन एज कंसीडर किया जाता था, जिसमें नॉवल और एसेस का डेवलपमेंट आपको देखने मिला इन अगस्तन एज में. राइट, तो बेसिकली प्रोस राइटिंग जो है आपकी, प्रोस राइटिंग का गोल्डन एज ऑफ प्रोस राइटिंग, गोल्डन एज ऑफ प्रोस राइटिंग बेसिकली कंसीडर किया जाता है आपका अगस्तन एज को, जिसमें नॉवल और एस्से का डेवलपमेंट ऑफ नॉवल एंड एस्सेज देखने मिला. राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस मोक इपिक पोइट्री. राइट, मोक इपिक पोइट्री जो कि क्लासिक, जिसे आप क्लासिकल इपिक स्टाइल में आप बोल सकते हो, सटायर किया जाता था सोसाइटी पर. राइट, तो मॉक इपिक पोइट्री के थ्रू भी यहाँ पे क्या होता था, क्लासिकल इपिक स्टाइल को यूज़ किया जाता था एज ए सटायर. सो दीज आर दी फीचर्स आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग अगस्तन एज. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स. सो गाइस
राइटर्स में हमारे पास सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप, who wrote the rap of the log. This is mock epic, right? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आपको इन डिटेल्ड मैनर देखने मिलता है इन एग्जाम्स ऑफ यूजीसी नेट एज वेल सेट एग्जाम्स ऑफ जो आपके स्टेट लेवल पर होते हैं उसमें भी, राइट? तो अलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉग, द रेप ऑफ द लॉग, बेसिकली कितने कैंटोज में ये लिखा है, डिवाइडेड कितने कैंटोज में है, कौन कौन सी स्पेशल लाइंस हैं इसके अंदर, काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यू गाइस कैन सी इन द एग्जाम्स ऑफ योर, राइट? तो बेसिकली ये एक इनका मॉक इपिक है. एज आई टोल्ड यू कि मॉक इपिक बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा था, राइट? सो दिस इज द एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर पॉप का द रेप ऑफ द लॉग मॉक इपिक. अपार्ट फ्रॉम दिस द डंसियार्ड. द डंसियार्ड क्या है? एक सटायर है, द डंसियार्ड, राइट? तो ये क्या है? आपका एक सटायर है जो कि फेमस और पॉपुलर हो रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो दीज टू एग्जाम्पल्स रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, द रैप ऑफ द लॉग विच इज मॉक एपिक एंड द डंसियार्ड विच इज सटायर, राइट? आफ्टर द अलेक्जेंडर पोप वी हैव मेजर राइटर जोनाथन स्विफ्ट. जोनाथन स्विफ्ट, right? Basically, Jonathan Swift, known for his Gulliver's Travel, right? Gulliver's Travel. This is an satire. ये भी एक satirical novel है, satirical novel, right? Written by Swift. And apart from this, a modest proposal, a modest proposal, right? Proposal, right? सो ये एक इनका पॉलिटिकल सटायर है. यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं विच इज पॉलिटिकल सटायर रिटन बाय स्विफ्ट, देन वी हैव मॉडेस्ट प्रपोजल, पॉलिटिकल सटायर, दिस इज, राइट? जैसे ऑटोबायोग्राफी की अपनी कैटेगरीज होती है, आपसे क्वेश्चन पुट होता है कि विच इनमें से कौन सी ऑटोबायोग्राफीज हैं एंड पार्टीशन नॉवेल्स कौन सी. जस्ट लाइक इन सेम मैनर यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि जो सटायरिकल नॉवल कौन सा है, राइट? identify political satire written by Swift and other writer they can ask. So these are the types of question you will have to prepare from this age, okay? क्योंकि यहीं से आपके questions बनते हैं. And after the Jonathan Swift we have Joseph Addison and Richard Steele. Number third, Joseph Addison and Richard Steele, right? So guys, these two are famous for the Spectator and the Tatler. जो आपका periodical essays है, इसके लिए ये दोनों के दोनों बहुत ही famous हैं, right? Spectator and Tatler. The Spectator and the Tatler. These two are periodicals, periodical essays, right? So guys, after the Joseph Addison and Richard Steele, we have Daniel Defoe, right? Daniel Defoe. Number 4, Daniel Defoe, who famous for Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, ये इनकी एक अर्ली नॉवल है. और आफ्टर दिस मोल फ्लैंडर्स, राइट? दीज टू मेजर वर्क्स रिटन बाय आपके डैनियल डिफॉय. ये जो गाइज इनका रॉबिन्सन क्रूसो है, दिस पब्लिश्ड इन द ईयर 1719, right? 1719, this is the year of publication. And Moll Flanders, this came in the year 1722, right? तो बेसिकली ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है ये डिफॉय की नॉवल है, राइट? और ये बेस्ड ऑन दी ट्रू स्टोरी ऑफ अ शिपरेक्ड
जो शिपरेक्ड की ट्रू स्टोरी है उस पर बेस्ड है, राइट, जिसके अंदर जो सीमैन होता है अलेक्जेंडर सेल्क्रिक, एक अलेक्जेंडर नाम का आपका सीमैन होता है इसके अंदर। इट इज़ फुल टाइटल, अगर मैं इसके फुल टाइटल की बात करूँ, इज़ द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रू, right? This is the complete title of Robinson Crusoe. Again, I'm just telling you the life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe, right? So this is the complete title of this particular novel written by Daniel Defoe. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से समरी बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, राइट? और इनका ये जो नेक्स्ट मॉल फ्लैंडर्स है बेसिकली दैट वाज पब्लिश 1722, इसके अंदर इस नॉवल को कंसीडर किया जाता है पिकारेस्क नॉवल, राइट? मॉल फ्लैंडर्स जो है आपकी, क्योंकि इसके अंदर स्टोरी नरेट की गई है एक ब्यूटीफुल और ग्रीडी विमन की हु टर्न्स टू क्राइम, वो किस तरीके से अपने आप को टर्न्स कर लेती है टूवर्ड्स द क्राइम, राइट? और अगर मैं इसके फुल टाइटल की बात करूं, देन द फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ द फेमस मॉल फ्लैंडर्स. This is the complete title. Again, I'm just telling you the fortunes and misfortunes of the famous Moll Flanders. This is the complete title, full title of the novels. Moll Flanders. Okay, these two works written by Daniel Defoe we study in Augustan age, right? After the major writers and their work, now I'm going to give you a tip कि ये जो UGC नेट है इस एग्ज़ाम में पीरियड से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जर्नलिज्म, सटायर और प्रॉस राइटर से आते हैं, तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट. प्रॉस राइटर्स, जर्नलिस्ट, जितने भी जर्नलिज्म वी स्टडी इन दिस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और सटायर, यू विल हैव टू मेक अ लिस्ट, सेपरेट लिस्ट टू रियली गेट क्लैरिटी टूवर्ड्स दिस एज. आपको उसकी लिस्ट बना के अपने पास सिक्योर करके रखनी है इन योर नोट्स, जो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको रिवीजन देने में, राइट? लेट्स मूव ऑन दी एज ऑफ सेंसिबिलिटी. दिस इज द थर्ड सब डिवीजन ऑफ न्यू क्लासिकल एज. तो गाइस, थर्ड वन वी हैव एज ऑफ सेंसिबिलिटी. सेंसिबिलिटी बेसिकली जो टाइमलाइन है वी हैव 1745 टू 1798. दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन टू रोमांटिसिज्म. तो कहीं ना कहीं आपका जो न्यू क्लासिकल में हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी स्टडी करते हैं, यहाँ से आपका ट्रांजिशन हो रहा है टू रोमांटिसिज्म, राइट? और वाई एज ऑफ सेंसिबिलिटी, क्यों हम इसको बोलते हैं? क्योंकि जो लिटरेचर है, लिटरेचर में लॉजिक और रीज़न से ज़्यादा इमोशन, नेचर और इमेजिनेशन पर फोकस बढ़ा. दैट इज़ वाई वी कॉल दिस एज ऑफ सेंसिबिलिटी. क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे? लिटरेचर में लॉजिक और रीजन से ज़्यादा क्या फोकस किया जा रहा है? इमोशंस, राइट, नेचर एंड इमेजिनेशन. तो दीज थ्री थिंग्स, और आप बोल सकते हैं टॉपिक्स को फोकस किया जा रहा है इन कंपैरिजन विद लॉजिक एंड रीजन, राइट? सेंटिमेंटल नॉवेल्स और पोएट्री ने रैशनलिज्म को चैलेंज किया. ड्यूरिंग दिस पीरियड जो सेंटिमेंटल नॉवेल्स हैं, कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल नॉवेल्स जो थी आपकी, वो चैलेंज दे रही थी कि इनको पोएट्री ने रैशनलिज्म को चैलेंज दिया, राइट? रैशनलिज्म को, किसको चैलेंज कर रही थी? रैशनलिज्म को. तो आपकी जो सेंटिमेंटल पोएट्री एंड नॉवेल्स, दीज टू कैटेगरीज ऑफ राइटिंग, ये चैलेंज कर रही थी रैशनलिज्म को, ओके? और ये जो आपका एज है रोमांटिसिज्म की और फर्स्ट स्टेप था. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रोमांटिसिज्म, राइट? So basically age of sensibility is the first step towards the romanticism, right? Now let's discuss literary features of this age, right? So guys, literary features में rise of the novel, rise of the novel, basically guys individual emotions पर based and psychological depth पर फोकस किया जा रहा था जो नॉवेल्स लिखी जा रही थी आपकी एज ऑफ सेंसिबिलिटी में. तो यहाँ पे फोकस किसको किया जा रहा था? इंडिविजुअल इमोशंस,
individual visual emotions, right, and psychological depth. साइकोलॉजिकल डेप्थ को फोकस किया जा रहा था ड्यूरिंग दिस पीरियड एज वेल. जो सेंटिमेंटल आपकी पोइट्री थी, राइट, वो नेचर और इमोशंस को ग्लोरीफाई कर रही थी कहीं ना कहीं. जो सेंटिमेंटल पोइट्रीज लिखी जा रही थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, सेंटिमेंटल पोइट्रीज ग्लोरीफाई आपकी वो कर रही थी. किसको ग्लोरीफाई कर रही थी? नेचर एंड इमोशंस को. ग्लोरीफाई नेचर एंड इमोशंस, राइट. प्री रोमांटिक एलिमेंट्स भी आपको इसमें देखने मिलेंगे बिकॉज जो रोमांटिसिज्म है, वी आर टॉक अबाउट जो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज वी स्टडी, राइट. काइंड्स ऑफ राइटर्स हम रोमांटिसिज्म में पढ़ते हैं. दे टॉक्स अबाउट इन अबाउट नेचर. तो यहीं से आप बोलेंगे प्री रोमांटिक जो एलिमेंट्स हैं, नेचर का डीप ऑब्जर्वेशन और इमोशंस को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी. क्योंकि यहाँ पे नेचर और डीप ऑब्जर्वेशन को, इमोशंस को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट प्री रोमांटिक एलिमेंट्स. तो प्री रोमांटिक एलिमेंट्स हमको एज ऑफ सेंसिबिलिटी में देखने मिलते हैं इन द शेप ऑफ नेचर एंड डीप ऑब्जर्वेशन एंड इमोशंस के थ्रू, राइट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स. लेट्स मूव ऑन द मेजर राइटर्स along with their work. So first we have Samuel Richardson. Right? Samuel Richardson, known for Pamela. Pamela, this is the first psychological novel. This considered first psychological novel. Right? Pamela. Remember the fact I'm just going to discuss. You will have to secure in your notes. Remember, क्योंकि यहीं से आपको questions बनते हैं. Next guys, after this Samuel Richardson, we have Henry Fielding, right? Tom Jones, most important picaresque novel written by Henry Fielding. यहाँ से summary based आपको question भी मिलता है. Tom Jones. तो इसका summary भी आपको prepare करना है for exam पॉइंट ऑफ व्यू. ये आपकी बेसिकली एक पिकारेस्क नॉवल कंसीडर की जाती है. एज आई टोल्ड यू, दिस ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग द सेंसिबिलिटी, राइट. एज ऑफ सेंसिबिलिटी में पिकारेस्क नॉवल का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव लॉरेंस स्टर्न. नंबर थर्ड मेजर राइटर वी हैव लॉरेंस स्टर्न, राइट. ही बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क Tristram Shandy, right. Basically this is an experimental novel. ये एक experimental novel consider की जाती है written by Lawrence Stern की, which we study as a major writer in age of sensibility. So guys, after Lawrence Stern we have Thomas Gray. I'm just writing here. So guys, next we have Thomas Gray, known for his most important poetry, Elegy Written in a Country Churchyard. Elegy Written in a Country Churchyard. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइटल बेस्ड कई बार एग्जाम में अगेन एंड अगेन रिपीट होता है. ये इनका जो मेलनकॉलिक पोइट्री है बेसिकली, राइट. ये एक मेलनकॉलिक पोइट्री है written by Thomas Gray, right. After the Thomas Gray we have William Blackie. Most important, Songs of Innocence and Experience. Songs of Experience से जो इनका symbolic poetry है, ये यहाँ से जितनी भी पोएम्स इन्होंने इसके अंदर, ये जो आपका एक ये Songs of Innocence है, राइट. यहाँ पर इन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी हुई हैं इंपॉर्टेंट, उनके टाइटल आपको यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बनता है. तो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट. यू विल हैव टू प्रिपेयर विलियम ब्लैकी के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ
इनोसेंस। ये जो कलेक्शन है इनका पोइट्री कलेक्शन है बेसिकली, तो यहाँ से आपकी पोएम्स के टाइटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक सिंबॉलिक पोइट्री है इनकी, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। इसको आप ज़रूर से इन डिटेल स्टडी कर लेना इफ़ यू रियली वांट टू क्लैरिटी टुवर्ड्स द न्यू क्लासिकल एज, राइट। सो गाइस, इस पीरियड को प्री रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है और यूजीसी नेट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज रोमांटिक एज से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। तो जो भी आपका एज जो होता है, जो आपकी आने वाली नेक्स्ट एज होती है, उससे इंटरलिंक्ड होता है, कहीं ना कहीं उसके एलिमेंट्स मिलते हैं, तो वो एज अपने आप में इंपॉर्टेंस देने लगती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, ये कहीं ना कहीं इसका आपको एलिमेंट्स, प्री रोमांटिक एलिमेंट्स यहाँ पर दिखते हैं एज यू नो नेचर और डीप ऑब्जर्वेशन और इमोशंस के थ्रू। तो दैट इज़ वाई दिस एज इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाई न्यू क्लासिकल एज इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जल्दी से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, राइज ऑफ सटायर एंड जर्नलिज्म। क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं आपके सटायर से, एसे से और पीरियोडिकल्स पर बेस्ड होते हैं एग्जामिनेशन में। डेवलपमेंट हो रहा है ऑफ द नॉवल का, जैसे कि रिचर्डसन, फील्डिंग और स्टर्न जैसे नॉवलिस्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे हैं। तो इनकी जो नॉवेल्स हैं वहाँ पे उनका डेवलपमेंट हो रहा है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स और मोक इपिक पोइट्री जो रिस्टोरेशन और अगस्तन लिटरेचर से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, यहाँ से आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, राइट। ट्रांजिशन फ्रॉम रोमांटिसिज्म, राइट, रैशनलिज्म, एज ऑफ सेंसिबिलिटी किस तरीके से रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पोइट से कनेक्टेड है। दैट इज़ वाई यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यूजीसी नेट में न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स और उनके वर्क्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ड्रैडन, पोप, स्विफ्ट, फील्डिंग और ग्रे, इनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। यहीं से आपको एमसीक्यूज़ मिलते हैं, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपको मिलते हैं, राइट। सो होप गाइज द वे आई डिस्कस इन टुडेज ऑफ माई वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। If you really think कि this video is worth for you, then please hit the like button because it motivates me to make further most important and relevant videos for you all, right? So don't forget to hit the bell icon, and if you are new to my channel, please subscribe my channel to get further notification. Till then, bye bye. We will meet in next video with another major relevant video. Till then, bye-bye.